Particles P and Q, they move on a line of greatest slope of a smooth inclined plane. P is released from rest at a point O on the line, and 2 seconds later, it passes through the point A with speed 3.5 meters per second. Okay, so you've got a smooth inclined plane. It looks something like this. It has some angle here. Let's call this angle theta. Now, there are two particles, P and Q. They're moving on the slope. P is released from rest at a point O on the line. Okay, so it's released from rest at a point O. So let's say this point is O. यहाँ से P release हुआ है from rest. So its initial velocity is 0 meters per second. 2 seconds later, it passes through the point A with speed 3.5 meters per second. So this is some point A. O से A तक, it takes 2 seconds. It passes through this point and it passes this point at a speed of 3.5 meters per second. Now, first of all, we need to find the acceleration of P and the angle of inclination of the plane. All right. Acceleration find करनी है. You see, it's a smooth inclined plane. The only force that's acting on the particle is its weight. Weight के अलावा और कोई भी force नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि acceleration constant है. Acceleration constant है, तो आप क्या कर सकते हैं? Constant और दूसरा भी क्या, वो दूसरा सिर्फ उसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से लग रही है. डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन 10 है, तो वही उसी का एक कंपोनेंट यहाँ पे लग रहा होगा प्लेन की डायरेक्शन के अंदर. ठीक है, डायरेक्टली हम 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये एंगल पता हो तो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं पता, लेकिन उसने और इन्फॉर्मेशन दी हुई है. उसने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 3.5 एंड द टाइम टेकन इज 2 सेकंड्स. आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं. You can say initial velocity is 0, u is 0, v is 3.5 meters per second, and the time taken is 2 seconds. आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड एक्सेलरेशन करनी है. कौन सी इक्वेशन कनेक्ट करती है इनको? v equals u plus at. Just input values in that equation. What do we get? Final velocity is 3.5, initial velocity is 0, plus a into 2. 3.5 over 2, that gives us 1.75 meters per second square. This is the acceleration that we have. Okay, ये उसने फर्स्ट पार्ट में कहा था. रिमेंबर, ये नीचे को मूव कर रहा है, तो हम एक्सेलरेशन, हम डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव ले रहे हैं? ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं फॉर p. अब उसने कहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी वी आल्सो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि 10 का कंपोनेंट लग रहा होगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो 10 का कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा? 10 sin थीटा. सो एक्सेलरेशन जो है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 10 sin थीटा, राइट? 10 का कंपोनेंट उधर जो लगेगा वही एक्सेलरेशन होनी चाहिए. अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फिगर आउट कर लिया फर्स्ट पार्ट. उससे पहले 10 sin थीटा को फिर हम क्या करेंगे? उससे इक्वेट कर देंगे. एक्सेलरेशन इज 1.75. 1.75 should equal 10 sin theta, and that gives you sin theta equals 1.75 over 10. That's 0.175. यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाए. What's this value? Sir, 10.1. 10.1 degrees. ये आपको फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में. ठीक है, this is the value of theta. All right, so the first part was relatively straightforward. आपको first part में सिर्फ ये करना था. Now let's look at the next part. It says, at the instant that P passes through A, the particle Q is released from rest at O. Okay. अब जब P इस पॉइंट के ऊपर है, A के ऊपर, Q is released from rest at O. Q भी ऊपर से वहां से रिलीज हुआ है. Okay. Now let me just copy this diagram. Oh,
अच्छा, P तो नीचे आ चुका है, बाकी सब ये चीज खत्म हो गई है। P is down here. सॉरी, A नीचे हाँ, पार्टिकल P नीचे आ चुका है। P जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स एट 3.5 meters per second. Q is also released from rest at this point. ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अब Q यहाँ से रिलीज हुआ है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 meters per second initially. It's released from rest. At time t seconds after Q is released from O, the particles P and Q are 4.9 meters apart. Find the value of t. अब इस पॉइंट के बाद कोई पॉइंट आता है जब वो 4.9 meters apart होते हैं. Now we don't know where exactly that's going to be, but let's just assume this point here is Q जब वो 4.5 4.9 meters apart है, ये P है. एट द एंड आपके पास ये सिचुएशन है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज 4.9 meters. तो मूव करने के बाद एंड पे क्या होता है, उनका डिस्टेंस कहीं पे 4.9 meters हो जाता है. So this is 4.9 meters. Now there are two particles that are moving. You have particle P and particle Q. What information do we have about both of them? P and Q दोनों नीचे को मूव कर रहे हैं, तो दोनों के लिए we are taking the downward direction as positive. लेफ्ट वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं. Initial velocity of P now is 3.5. Remember, हम कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं इसका मोशन? इस पॉइंट से ऑनवर्ड. ओके, पार्टिकल Q कब रिलीज हुआ है? जब P A से पास कर रहा है. तो अब हमारा इनिशियल जो पॉइंट है वो ये है जब P A के ऊपर है और Q O के ऊपर. ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी फॉर P इज नाउ गोइंग टू बी 3.5. फाइनल वेलोसिटी ऑफ P हमें नहीं पता. फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता. एक्सेलरेशन तो वही है, उसी प्लेन के ऊपर है, सिर्फ वेट लग रहा है. तो ग्रेविटी है 10 का कंपोनेंट, वही लग रहा होगा दोनों के ऊपर. एक्सेलरेशन इज द सेम एज बिफोर, दैट्स 1.75. टाइम जो है वो दोनों के अंदर कॉमन होगा, राइट? क्योंकि दोनों का टाइम हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? जब क्यू रिलीज हुआ है ओ से. उस पॉइंट से ऑनवर्ड देखें तो दोनों का टाइम सेम है. तो जो कॉमन वेरिएबल्स होते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं. तो हम कहते हैं कि टाइम ऑफ पी, लेट्स से दैट इज इक्वल टू टी. तो टाइम ऑफ क्यू जो होगा वो भी हम इसको भी टी ले लेंगे. पी एंड एस क्यू एज वेल हियर, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इनको भी हमें यूज करना होगा. ठीक है, ये इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता अभी. नाउ व्हाट अबाउट क्यू? क्यू की इनिशियल वेलोसिटी इज 0. Acceleration of Q is also 1.75 because again वो भी उसी प्लेन के ऊपर है, सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वही ग्रेविटी 10 लग रही है. तो उसका कंपोनेंट जो लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर दैट्स आल्सो 1.75. ये दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास. नाउ वी आर गिवन दैट at one instant the distance between P and Q is 4.9 meters. तो आप क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो एस पी तो आगे मूव कर जाएगा, राइट? पी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड और जो Q का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, इनमें जो डिफरेंस है दैट शुड बी 4.9. सो यू कैन से SP minus SQ दैट शुड इक्वल 4.9. इसके अंदर वैल्यूज इनपुट कर दें और आप देख लें आपके पास टाइम की वैल्यू यहाँ से आ जानी चाहिए. अब कौन सी इक्वेशन कनेक्ट करती है इनको? S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. यहाँ पे वो इक्वेशन लिख लेते हैं ऊपर. कनेक्ट कहाँ से होंगी? S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. This is the equation that connects these variables. SP UT plus half AT square, so that's 3.5. 3.5 into T plus half into 1.75 into T square.
that equals 0t, no, that does not equal, minus 0t plus half a, which is 1.75 into t square. This equals 4.9. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली टर्म्स, राइट, पूरी की पूरी कैंसिल होगी. व्हाट आर वी लेफ्ट विद 3.5 times t equals 4.9. What value of t do we get from this? 1.4. 1.4. 1.4 हमारे पास यहां से आ रहा है. ये टाइम इधर से आ रहा है. ठीक है, आपको यही t की वैल्यू फिगर आउट करनी थी. सो आफ्टर q इज रिलीज्ड, this is the time that it takes for it. Make sense? ये is this correct? ये आता है? Somebody confirm this as well. जी सर, यही आता है. सर ठीक पीछे है, 0.4 आता है. 0.4. In the marking Yes. scheme, it's 0.4. Okay, let me just check. मैं यहाँ से a से start किया. Okay, I'm sorry about this. So there's one thing that we're missing here. Yeah, इनका पहले भी तो डिस्टेंस था ना, पहले भी डिस्टेंस था इनका, वो हम यहाँ पे वो हमने कंसिडर नहीं किया. 4 इनका इनिशियली भी डिस्टेंस था कुछ ना कुछ. 4.9 meters apart उसने कहा था कि टोटल है. The particles P and Q are 4.9 meters apart at that point. Yeah, okay, ठीक है. I'm sorry about that. Basically हो ये रहा है कि जब वो स्टार्ट कर रहे हैं, जब P ने स्टार्ट किया है O से, तो O से वो A पे ऑलरेडी आ चुका है. A पे ऑलरेडी वो आ चुका है, तो उसने कुछ डिस्टेंस पहले से ही ट्रैवल कर लिया. कुछ डिस्टेंस उसने पहले से ट्रैवल कर लिया. तो ये डिस्टेंस तो पहले से ही उनमें होगा. ऑलराइट, सो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि और ए के दरम्यान में कितना डिस्टेंस है, बिकॉज वो भी उसमें ऐड करना पड़ेगा. लेट मी एक्चुअली जस्ट ऐड दैट हियर. एक वो यहाँ पे पहले भी उनका डिस्टेंस था. Q और P ने जब यहाँ से स्टार्ट किया है, दे ऑलरेडी हैव दिस डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, इनिशियली उनके दरम्यान में कुछ गैप है. ओके, तो इनिशियली कितना गैप है वो हम अगर P की मूवमेंट से फाइंड कर लें, हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, फाइनल ये थी, टाइम टेकन ये था. वी कैन फाइंड कि उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी. S इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी वहां पे हमारे पास कितनी आ रही थी? Initial velocity of P was 0. Time that it took to get there was 2 seconds. Half into A, which was 1.75 into T, which is 2 squared. ये क्या आता है? 4 over 2, 2 into 3.5 1.75. सर. That's 3.5 meters. और A के दरम्यान में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस OA, that is 3.5 meters. ये और A के दरम्यान में ऑलरेडी डिस्टेंस है. ठीक है, तो अगर हम ये क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे हम जर्नी देख रहे हैं O से A तक पार्टिकल P की. तो जब ये अब इन्होंने स्टार्ट किया है, उनके दरम्यान में 3.5 मीटर्स ऑलरेडी डिस्टेंस है पहले से. So this distance
is already 3.5. तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कहा है कि 4.9 मीटर्स एक दूसरे से दूर होने चाहिए. अब 3.5 तो ऑलरेडी दूर है वो, राइट? तो और कितना उन्हें एक दूसरे से गैप उनका बढ़ना चाहिए? 4.9 minus 3.5, that is 1.4 meters. तो दोनों के दरम्यान में जो गैप है that should increase by 1.4 meters. तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड P की डिस्प्लेसमेंट 1.4 मीटर ज्यादा होनी चाहिए Q की डिस्प्लेसमेंट से, नॉट 4.9, क्योंकि 3.5 तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस था दोनों के दरम्यान में. तो अगर डिस्टेंस दोनों के दरम्यान में 4.9 होना चाहिए, तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड P को 1.4 मीटर ज्यादा ट्रैवल करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने 4.9 से इक्वेट किया ना, which have actually equated it to 1.4. यहाँ पे 1.4 आना चाहिए. तो ये आपके पास यहाँ पे इसको अगर हम 1.4 करें, we get 3.t equals 1.4. 1.4 over 3.5, what's that? 0.4. 0.4 seconds. तो हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मिस कर दी थी, वो ऑलरेडी 3.5 मीटर्स अपार्ट थे. तो उसके बाद आपने देखना था कि और कितना डिस्टेंस उनमें बढ़ेगा. That's 1.4 meters. So we should have equated it to 1.4 instead. Okay. Does this make sense to everyone? Sir, can you please explain why we take the displacement as 1.4 again? Yeah. This is where the journey is starting. Particle P is starting from point O and it's coming to point A. O से A तक distance we have calculated, it turns out to be 3.5 meters. So in the first 2 seconds of P's journey, it has already traveled 3.5 meters. Okay. Now, when particles P and Q start after this, they're already 3.5 meters apart. This is when they start. Now, Q starts moving downwards and P is also moving downwards. At one point, you are saying the distance between them is 4.9 meters apart. Initially, the distance was 3.5 meters. They were 3.5 meters apart, and at another point, they end up being 4.9 meters apart. अब देखें, starting from this point, how much more does P have to travel as compared to Q? 3.5 meters तो already distance है. अगर distance ज़्यादा होना है, तो कितना distance increase हो रहा है उनके दरम्यान में? 4.9 minus 3.5. That means P should be traveling 1.4 meters more than Q after this point. ठीक है, P 1.4 मीटर ज्यादा ट्रैवल कर लेगा, तो क्या होगा? डिस्टेंस दोनों के दरम्यान में 3.5 प्लस 1.4 4.9 हो जाएगा. सो 1.4 मीटर्स जो P की डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू Q की डिस्प्लेसमेंट आफ्टर दिस पॉइंट. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir, I got it. ठीक है, दिस इज वन वे टू डू इट. Another way could be, so यहाँ पे हम assume क्या कर रहे हैं? SP is P's displacement from the point A and SQ is Q's displacement from the point O. तो दोनों की अलग अलग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं. अगर आप O से डिस्प्लेसमेंट देख रहे होते दोनों की, तो फिर आप यहाँ पे SP और SQ की वैल्यूज में ही वो 3.5 ऐड कर देते हैं. बट आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी मोर कंफ्यूजिंग. If you understand this, this is better. Question number 63 from the worksheet. A particle P is projected vertically upwards from a point on the ground with speed 17 meters per second. Another particle Q is projected vertically upwards from the same point with speed 7 meters per second. But particle Q is projected t seconds later than particle P. In the first part, it says, given that the particles reach the ground at the same instant, find the value of t. Okay.
So there is some horizontal ground. There are two particles जो same point से project हुए हैं. We can just represent them separately here. This is particle P, let's say. Particle Q भी वहीं से project हो रहा है, but सिर्फ represent करने के लिए हम सबसे उसको side पे बना लेते हैं. Particle Q. P की initial speed कितनी है? 17 meters per second. और Q की initial velocity is 7 meters per second. Now, particle Q is projected t seconds later than particle P. अब उसने कहा the particles reach the ground at the same instant. Find the value of t using this. अच्छा, इसमें हम ये कर लेते हैं कि टोटल टाइम निकाल लेते हैं दोनों का, फिर उनका जो डिफरेंस आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि t कितना है. तो टोटल टाइम टेकन अगर हम p का फाइंड कर लें, p का टोटल टाइम फाइंड कर लें for it to come back to ground, और q का टोटल टाइम फाइंड कर लें for it to go up and then come down to ground. तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? There are two ways of doing this. We can break it down into two parts if you want, or we can just do it directly as well. So दो parts में कैसे करेंगे? आप कहेंगे अच्छा initial velocity 17 है और हम final point यहाँ तक, इसको हम कह लें 0, यहाँ तक टाइम निकाल लें और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. p का टाइम भी आ जाएगा, q का टाइम भी आ जाएगा. That's one way to do it. So we have done this before. ये आप कर सकते हैं. अब क्योंकि इसी पॉइंट से प्रोजेक्ट हुआ है, सेम पॉइंट से, और इसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, वी कैन ऑल्सो डू दिस के क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ऊपर जाते हुए जब इसकी स्पीड यहाँ पे 17 मीटर्स पर सेकंड है, जब ये वापस आएगा, वापस पहुंचकर इसकी स्पीड -17 मीटर्स पर सेकंड होएगी. इसी तरह जब क्यू पार्टिकल ऊपर जा रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है, इनफैक्ट वेलोसिटी इज 7 मीटर्स पर सेकंड ऊपर जाते हुए क्यू की. जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी? -7 मीटर्स पर सेकंड. तो हम पूरे जर्नी को इकट्ठा भी कंसीडर कर सकते हैं if you want. ओके, तो P क्यों देख ले, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? Yes, Can we say that the displacement is 0? yes, we can also say displacement is 0. That's also going to work. Let's use that instead. चलें वो कर लें. इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, अगर ये फाइनल वेलोसिटी वाली चीज आप कंफ्यूज करती है, let's use displacement. Initial velocity is 17, displacement is let's say 0. Acceleration क्या होगी? क्योंकि particles की two direction motion है, normally यहाँ पे क्या करते थे? We would take upwards as positive. If upwards is positive, acceleration is going to be -10. इसी तरह Q के लिए देखें. Q में क्या होगा? Initial velocity is 7, displacement is 0 because वो final ground पे आ गया eventually. Acceleration is -10. आपको find क्या करना है? आपको find करना है time taken. दोनों का टाइम टेकन निकाल लें. कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? s equals ut plus half at square. दोनों के ऊपर वही अप्लाई कर दें. From the first equation we have इसको हम tp कह लें अगर. This is tq. Zero equals ut 17 tp plus half a, which is -10, into tp squared. This is the first equation that we get. This gives us 17 tp minus 5 tp squared equals 0. Take tp common, and that gives you 17 minus 5 tp equals 0. One value of tp that you're getting is 0, and the other value is 17 over 5, which is 3.4 seconds. ये आपके पास time taken by particle p आ गया to reach the ground. Do the same thing for q. Zero equals u, which is 7, into t plus half a, which is -10, into t square. वही इस पे apply कर दें. Again, we can take tq common. We're left with 7 minus 5
TQ equal to 0. TQ equals 0, ये तो उसका starting point है, right? जब उसने start किया था. Or TQ equals 7/5, which is 1.4 seconds. So time taken by Q is 1.4 seconds. Time taken by P is 3.4 seconds. अब जो particle P था, जो particle P था, या particle P पहले रिलीज हुआ था, particle Q बाद में रिलीज हुआ था, but they are reaching the ground at the same instant. तो फिर Q कितनी देर बाद प्रोजेक्ट हुआ होगा, क्योंकि P को तो 3.4 सेकंड्स लग गए, Q को 1.4 सेकंड्स लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्राउंड को सेम पॉइंट पे हिट कर रहे हैं. इसका मतलब है Q जो है वो 2 सेकंड्स बाद प्रोजेक्ट होना चाहिए. तो T की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी, 3.4 minus 1.4, दैट्स गोइंग टू बी 2. Q अगर 2 सेकंड्स बाद प्रोजेक्ट होगा तो वो भी सेम टाइम इंस्टेंट के ऊपर ग्राउंड को हिट करेगा. द वैल्यू ऑफ T शुड बी 2. Is that okay? It's quite long for 2 marks, but this is what we have to do here. इसमें क्या मसला? No, sir. Sir, Yes. this isn't related to the question, but can you write down the equation of the time for Q in terms of the time for P, like an equation connecting the two times? I think we'll need to do that in the second part. तो अभी हमें करनी है. Second part में वो चाहिए होगा शायद. At a certain instant when both P and Q are in motion, P is 5 meters higher than Q. Find the magnitude direction. Yeah, so we'll do that in the second part. Second part में देखते हैं उसको, ठीक है? That's relevant for the second part. Okay. At a certain instant when both P and Q are in motion, P is 5 meters higher than Q. All right. Now, let me just represent that information here again. दोनों की initial speed क्या थी? 17. We can write that here again. UP is 17 and UQ is 17. जब उसने कहा डिस्प्लेसमेंट एक की दूसरे से 5 मीटर हायर है, दोनों को कनेक्ट करना है हमने, तो हमने कॉमन चीजें भी देखनी होगी दोनों के अंदर. तो भी देखते हैं. इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम आ गई, 17 और 7 आ गई, 7 आ गई पहले जैसी. आई एम सॉरी, P was 17, the other was 7. Q की initial velocity is 7. Acceleration of P is -10. Acceleration of Q is also -10. अब फाइनल वेलोसिटी तो उस पॉइंट पे नहीं पता होंगी, टाइम टेकन भी हमें नहीं पता, और हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या है. P is 5 meters higher than Q. तो हमारे पास एक रिलेशनशिप होगा जो हम यूज कर लेंगे बाद में. SP minus SQ those should be 5 meters. Okay, दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स का जो डिफरेंस है that should be 5 meters. What else can we use here? एक तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमें टाइम्स का भी पता है. उसने कहा है Q is projected T seconds later than particle P. तो अगर हम P का टाइम लेट्स से T से डिनोट कर लें, पार्टिकल P का टाइम अगर हम इसको T से डिनोट कर दें, what about the time taken by the particle Q in that case? हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे, Q is projected T seconds. T की वैल्यू तो हमने फाइंड भी कर लिया. It's projected 2 seconds later than P. Okay. Let me just copy that diagram as well. Now we're not considering the complete journey. We're only considering the starting point and the point where their difference in height is, or whatever is given, 5 meters. Initial point दोनों ने same point से start किया,
लेकिन किसी पॉइंट पे जाके अब क्या होता है, P जो है वो Q से 5 meters higher. So maybe P somewhere here, Q is at this height. दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है हाइट का, that is 5 meters. अब देखें, P ने पहले स्टार्ट किया और Q ने बाद में स्टार्ट किया, और इस टाइम इंस्टेंट तक दोनों का उसके बाद जो है टाइम एक तरह से एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम है. एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम है. 5 मीटर जब दोनों का डिफरेंस आता है तो एंडिंग पॉइंट तो हम सेम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन P ने जल्दी स्टार्ट कर लिया था, तो P को ज्यादा टाइम लगा होगा एज कम्पेयर टू Q. राइट, वी डिस्कस दिस बिफोर इन डिटेल. अगर हम कहें कि P ने टाइम 0 पे स्टार्ट किया, तो Q कितने टाइम पे स्टार्ट किया होगा? उसने टाइम 2 पे स्टार्ट किया होगा. और फाइनल टाइम अगर लेट्स से 10 है, जहां पे उनकी हाइट का डिफरेंस 5 मीटर्स होता है, तो P को कितना टाइम लगा है टोटल? 10 सेकेंड्स. और Q ने क्योंकि T इक्वल्स 2 पे स्टार्ट किया था और टाइम इक्वल्स 10 पे वो उस हाइट पे पहुंचा है, तो उस हाइट तक पहुंचने के लिए Q को कितना टाइम लगा है? उसको 8 सेकेंड्स लगे. तो जो P का टाइम होगा, अगर उसको हम 10 एज्यूम कर लें, इसको T एज्यूम कर लें, तो Q का टाइम कितना होना चाहिए? इट शुड बी 2 सेकेंड्स लेस देन दैट. Q का टाइम उससे 2 सेकेंड्स कम होना चाहिए, बिकॉज उसने बाद में स्टार्ट किया है, उसको उस सेम टाइम इंस्टेंट तक 2 सेकेंड्स कम लग रहे होंगे. अगर आप TQ को T एज्यूम करते, तो TP उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता? T+2. सो आपने क्या देखना है? P का टाइम 2 सेकंड ज्यादा होना चाहिए, Q का कम होना चाहिए. आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. हमने TP को T कह दिया है, तो TQ शुड बी T-2 फॉर दैट रीजन. ऑलराइट. इस पे क्या मसला? ये क्लियर है? ये दोनों के टाइम्स आ गए. हम दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स भी देख लेंगे, SP एंड SQ. इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? इट शुड बी 5. SU A and T, अगेन कौन सी इक्वेशन कनेक्ट करती है इनको? S equals UT plus half AT square. ये आप रिलेशनशिप यूज कर लें इसके अंदर दोबारा से. SP, U is 17 into time, which is T, plus half into A is 10, minus 10 into T square, minus SQ is initial velocity of Q, which is 7, plus into T. टाइम कितना है Q का? Q का टाइम is T-2, plus half into A, which is minus 10, into T, which is T-2 whole squared. ये आपके पास SP minus SQ आ गया. This should equal 5. This is the equation that you have. आप उससे find करने का क्या है? Find the magnitude and direction of the velocity of each of the particles at this instant. Velocities हम फिर उसके बाद उसकी find कर लेंगे. Velocities क्योंकि दोनों की different है, वो हमें find करनी है. तो वो क्योंकि उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते दोनों को कनेक्ट करने के लिए. तो इसलिए हम यहाँ पे अभी उसको यूज नहीं करेंगे. फाइन एंड पे जो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद फिर हम दोनों की वेलोसिटीज फाइंड कर लेंगे. क्योंकि आपको वो चीजें यूज करनी होती हैं जो आपको या तो पता है या दोनों को कनेक्ट करती हो. सिर्फ यू इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, हमें टाइम के बारे में रिलेशनशिप पता है, और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप पता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है दैट इज 5. तो उसलिए हमने ये चारों चीजें यूज की हैं टू कनेक्ट दीज टू ऑब्जेक्ट्स. यहाँ से टाइम की टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फिर हम वेलोसिटीज फाइंड कर सकते हैं उसके बाद. What do we get from this then? We have 17t minus 5t square. Subtract from that 7 into t minus 2, that's 7t minus 14, minus 5 into t square minus 4t plus 4 equals 5. Let's simplify this again. We get 17t minus 5t square minus 7t minus 14 minus 5t square
plus 20t minus 20 equals 5. Simplify this. 17t minus 5t square minus 70 plus 14 plus 5t square minus 20t plus 20 equals 5. 5t square 5t square get cancelled. 17t minus 70 minus 20t. What do we get from this? 10 minus 20 is that minus 10t. And plus 14 plus 20, that's plus 34 equals 5. Minus 10t equals minus 29 and t equals 2.9. t क्या represent कर रहा है? t represent कर रहा है time of p. ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि tp की वैल्यू क्या आ गई? tp is 2.9. What about tq? tq is t minus 2. tq would be 2.9 minus 2, which is 0.9. ये हमारे पास tp और tq की वैल्यूज आ गई, दोनों के टाइम टेकन आ गए. अब हमें क्या करना है? दोनों की वेलोसिटीज फाइंड करनी है. उसके लिए हम v equals u plus at यूज कर लेते हैं. vp equals u plus at. Write down the equation here. v equals u plus at. ये equation यूज कर ले दोनों के लिए. Velocity of p is initial velocity of p, which is 17, plus a, which is minus 10 into time taken by p, that's 2.9. ये आपके पास p की velocity आ जाएगी. 17 minus 29, which is minus 12. vq, u, initial velocity of q is 7, plus minus 10 into time taken, that's 0.9. 7 minus 9, that is minus 2. दोनों की velocities हमारे पास नेगेटिव आ रही है. उसने क्या कहा था? उसने स्पीड पूछा है या उसने पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल्स एट दिस इंस्टेंट. अब देखिए हमने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम की हुई है? हमने अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया हुआ है, राइट? वेलोसिटीज दोनों की नेगेटिव आ रही हैं. इसका मतलब यह है कि जब ये 5 मीटर्स दोनों का डिस्टेंस होता है आपस में, तो दोनों एक्चुअली नीचे को मूव कर रहे थे. तो वापस रिटर्न जर्नी पे इनकी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस 5 हो रहा है. ओके, तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसने मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ p हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से इट्स 12 meters per second downwards, and vq would be 2 meters per second, and this is also in the downwards direction. ये आपके पास दोनों की velocities आ गई at the time instant when the difference in velocity, when the difference in their displacements is 5 meters. Is this okay? Make sense to everyone? Pakiza, is your question answered as well? Times के दोनों के relationship? Yes, sir, but I'm still like a little confused. Like making the equation, I always find it really hard and I mess up the sign. And also, I have Yeah, a so just question. okay, just remember this. Whatever particle is projected earlier, उसका टाइम ज्यादा होना चाहिए, और जो पार्टिकल बाद में प्रोजेक्ट हुआ है उसका टाइम कम होना चाहिए. Sir, Okay? will this work for all cases? Yes, because if so अगर एंडिंग पॉइंट सेम है, so the thing is जर्नी का टाइम आपने देखना है. जर्नी का टाइम अगर आपको पता है कि स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट है बट एंड जो है वो दोनों का सेम है, इस केस के अंदर एंड p का भी वही है और q का भी वही है. p एंड q बोथ हैव द सेम एंड, लेकिन p ने जल्दी स्टार्ट कर दिया और q ने थोड़ा बाद में स्टार्ट किया है. तो फिर आप देखें p का जो टाइम बनेगा, ये t इक्वल 0 से स्टार्ट हुआ, ये किसी और टाइम पे स्टार्ट हुआ, तो q का टाइम कम बनेगा उस टाइम तक और p का ज्यादा बनेगा. तो अगर एंडिंग टाइम सेम है और जो पार्टिकल पहले स्टार्ट हुआ आएगा उसका ज्यादा टाइम होगा, जो पार्टिकल बाद में स्टार्ट हुआ होगा वो उसका टाइम कम होगा. तो ये इट्स स्टैंडर्ड फॉर दिस केस. तो आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह के मिलेगा जहाँ पे एंडिंग पॉइंट आप सेम पॉइंट पे कंसिडर करो, या तो उनकी सेम हाइट है या फिर उस पॉइंट पे जाके उनके हाइट का डिफरेंस ये है,
तो नॉर्मली आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर केस में, इनफैक्ट जो भी क्वेश्चन मैंने देखे हो सकता है कोई और हो जिसमें कुछ और चीज लग रही हो, लेकिन उसमें फिर एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होगा. अगर एंडिंग पॉइंट सेम है, that's what you'll see in all the questions like this, कि एंडिंग पॉइंट सेम होगा. तो जब भी एंडिंग पॉइंट सेम होगा, तब यही होगा कि जो पार्टिकल पहले प्रोजेक्ट हुआ है उसका टाइम ज्यादा होगा, जो पार्टिकल बाद में प्रोजेक्ट हुआ है उसका टाइम कम होगा. तो आप इस तरह से उसको कनेक्ट कर देंगे. अगर एक को आपने टी अज्यूम कर लिया, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे क्यू का टाइम क्यू का कम होना चाहिए. यू शुड हैव माइनस साइन देयर. ऑलराइट, I got it now. Thank you. okay. Question number 80 from the worksheet. A particle of mass 3 kilograms falls from rest at a point 5 meters above the surface of a liquid which is in a container. All right. So we have a container. Surface of liquid cube. This is the container. Container mein you've got some water. Ye uska surface hai, let's say. It's released from rest at a point 5 meters above the surface. So this is some point. Iska jo distance hai surface se, so chalo isko upar tak le aate hain. This is the surface of the liquid. Ye jo distance hai yahan tak, this is 5 meters. Released from rest, इसकी initial velocity कितनी होगी? 0 होगी. And since it's moving downwards, हम क्या करेंगे? Downwards direction यहाँ पे positive ले लेंगे. Okay. There's no instantaneous change in speed of the particle as it enters the liquid. तो basically यहाँ पे जब hit करेगा particle surface को और उसके बाद फिर अंदर जाएगा, तो एकदम से कोई change नहीं आती है. हो सकता है यहाँ पे जब hit किया उसने तो 5 meters per second है, तो liquid के अंदर जो starting velocity होगी वो भी 5 ही होगी, एकदम से कुछ change नहीं हो जाएगी. That's what it says. Okay. The depth of the liquid in the container is 4 meters. So this depth is 4 meters. This total distance. The downward acceleration of the particle while it is moving in the liquid is 5.5 meters per second square. इसके अंदर वाली जो acceleration है ये उसने दी हुई है 5.5 meters per second square. Okay, जब liquid में चला जाएगा तब free fall तो नहीं है ना. ऊपर तो फ्री फॉल है, वहां पे तो 10 ही होगी. तो लिक्विड में चला गया तो उसमें ऑफ कोर्स वो पानी की भी रेजिस्टेंस होगी, जो भी लिक्विड है उसकी रेजिस्टेंस होगी, तो एक्सेलरेशन आपकी 10 नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी थोड़ी सी. Now in the first part it says find the resistance to motion of the particle while it is moving in the liquid. Okay, resistance to motion of the particle while it is moving in the liquid. हमें क्या mass दिया हुआ है? We are given the mass of the particle, that's 3 kilograms. Resistance to motion यानी force की बात हो रही है. Force और kinematics को क्या चीज कनेक्ट कर रही होती है? Resultant force equals mass into acceleration. अगर हम वो देखें तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है. पार्टिकल नीचे को मूव कर रहा है ना, जब नीचे को मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव. फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी? फॉरवर्ड फोर्स इसमें इसका वेट होगा, राइट? वेट की वजह से वो नीचे जा रहा है. वेट कितना है? 30 न्यूटन. ठीक है, सो दिस इज हाउ द पार्टिकल इज मूविंग इन द लिक्विड. लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है? डाउनवर्ड फोर्सेस 30 न्यूटन. पानी की कुछ लिक्विड की कुछ रेजिस्टेंस होगी, दैट्स गोइंग टू एक्ट अपवर्ड्स. लेट्स कॉल दैट आर. वो आपको फाइंड करना है. दीज आर द टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग. सो यू कैन से 30 minus r, that equals mass, which is 3, into acceleration. Acceleration is given to be 5.5 here. Okay, और कोई information तो नहीं दी हुई यहाँ पे? और कोई force नहीं है? Yeah, so that's the only force. 5.5 इसकी acceleration है in the liquid. तो ये आप apply कर देंगे, यहाँ से resistance की value आ जाएगी. What do we get? 30 minus r equals 16.5. 13.5. R equals 13.5 Newton. This is the resistance that this particle has to face in the liquid. Okay, that was the first part.
Now let's look at the second part. Second part में वो कहता है sketch the velocity time graph for the motion of the particle. From the time it starts to move until the time it reaches the bottom of the container, show on your sketch the velocity and the time when the particle enters the liquid and when the particle reaches the bottom of the container. आपके पास कौन से important times हैं? एक वो जब उसने start किया, ठीक है, फिर उसने किसी point पे इस surface को hit किया और उसके बाद फिर जब उसने ground को hit किया. So there are two parts of the motion. There are two parts of the journey. एक जो free fall है ऊपर और दूसरा part है जब वो liquid के अंदर है. ठीक है, इन दोनों parts में आपको देखना क्या हो रहा है. Velocity time graph है तो आपको velocities चाहिए दोनों के अंदर और time चाहिए. तो आपको इस time पे velocity चाहिए. So let me actually call these points something. Let's say this is point O जब उसने start किया, नीचे this is point A, this is point B. तो आपको O, A और B पे velocities चाहिए और times चाहिए. फिर आप velocity time graph बना सकते हैं. Acceleration क्योंकि constant है, ऊपर वाली acceleration 10 है, ये constant acceleration है. नीचे वाली acceleration 5.5 है, that's also constant. तो आपको पता है कि straight lines बनेगी, right? Velocity time graph का gradient जो है, acceleration होता है ना, तो अगर acceleration constant है, इसका मतलब gradient constant है, तो line तो straight बननी है. हमें सिर्फ अगर ये points पता चल जाए तो उनके दिमाग में straight lines बना देंगे. Okay? तो हमें क्या फाइंड करना है? दो चीजें फाइंड करनी है. एक हमें O से A जर्नी देखनी है जो फ्री फॉल है. इस जर्नी में वी नीड द फाइनल वेलोसिटी एंड आल्सो द फाइनल टाइम. इस जर्नी में हमें क्या क्या पता है? हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी is 0. We know the displacement is 5 and we know the acceleration. डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? +10. यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए और टाइम टेकन चाहिए. वो दोनों चीजें फाइंड कर लें. कौन सी इक्वेशन कनेक्ट करके अगर हम वेलोसिटी पहले फिगर आउट कर लें, 2as equals v square minus u square. इसको यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं. 2 into 10 into 5 that equals v square minus 0 square, and this turns out to be 100 equals v square. V equals 10. This is the velocity when the particle hits the surface. Velocity at A जब particle surface को hit करता है. ठीक है, these are the 3 points. O से उसने start किया, फिर हम कह रहे हैं ये point A है, जब उसने hit किया surface को, B is the bottom of the container. All right. Okay. अब इसी तरह से आप इसका time निकाल लें इस point के ऊपर. Time के लिए we could use V equals U plus 80 now. Because we have the final velocity is 10, initial velocity was 0, A is 10 into T, the time taken is 1 seconds. A के ऊपर आपको time भी मिल गया और velocity भी मिल गई. ठीक है, अब क्या करेंगे? सेकंड जर्नी को देखेंगे A से लेकर B तक. A to B. Now what happens from A to B? Initial velocity क्या है इस जर्नी के अंदर? Initial velocity क्या होगी इस पर, इस यहाँ पे A से B जब सरफेस के अंदर है? 10. 10. Yes. So देखिए उसने कहा था इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं है कोई वेलोसिटी में, उसने कहीं पे लिखा था there is no instantaneous change in speed of the particle as it enters the liquid. तो जो ऊपर जिस स्पीड पे उसने हिट किया है सरफेस को, उसी स्पीड पे वो एंटर होएगा, मतलब वही उसकी इनिशियल स्पीड होगी इस पॉइंट के ऊपर. दैट्स 10 meters per second. इनिशियल वेलोसिटी सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगी? इट विल बी 10. और हमें क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट इज 4. वी आल्सो नो एक्सेलरेशन इन द लिक्विड इज 5.5. यहाँ पे आपको क्या चाहिए? इसी तरह से आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए और टाइम टेकन चाहिए इस जर्नी का भी. लेट्स फाइंड बोथ ऑफ दोस थिंग्स एज वेल नाउ. 2as equals v square minus u square. उसी तरह जिससे हमने पहले किया था, इसमें इनपुट कर दें 2 into
5.5 equals v square minus, अच्छा माइनस कर दिया, s यहाँ पे होना चाहिए था, 2 into 5.5 into 4 equals v square minus u square, v square minus 10 square. Now what do we get from this? V square equals 8 into 5.5, that's 44. 44 plus 10, that's 144. V equals 12. Final velocity यहाँ पे 12 आ गई. This is the velocity at B. इसी तरह से आप टाइम टेकन निकालें. V equals U plus 80. V is what you have to find out. U is 10. Acceleration is 5.5. Sorry, हमें टाइम निकालना था हमें. V is 12. 5.5 into t. यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा. 2 over 5.5. What's that? 2 over 5.5. क्या आता है? 0.3636. 0.3636, and I think it's going to keep going on like this. ये आपका आपकी t की वैल्यू है. Okay. All right. This is the time instant. How is this possible? अच्छा, this is within the liquid. अब ये देखो starting point हमने क्या consider किया? Starting point ये A से B तक टाइम है. A से लेकर B तक कितना टाइम लग रहा है आपको? ठीक है, ऊपर 1 सेकंड लग रहे थे, अंदर आके it's 0.3636 seconds. This is the time from A to B. ये A से B टाइम है. ऊपर वाला टाइम क्या था? This was the time from O to A. ये हमारे पास टाइम्स की और डिस्प्लेस और वेलोसिटीज की वैल्यूज आ गई. हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेंगे. This is what the velocity time graph may look like. एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, टाइम भी पॉजिटिव है. सिर्फ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी इज हियर, टाइम इज हियर. कौन से इंपॉर्टेंट टाइम इंस्टेंसेस है आपके पास? 0, फिर टाइम 1, और उसके बाद ये वाला टाइम कौन सा होगा? 1 plus 0.3636. ये आपका एक और टाइम इंस्टेंट आ गया 1.3636. ये इंपॉर्टेंट टाइम इंस्टेंसेस हैं. वेलोसिटीज की वैल्यूज क्या है? स्टार्ट उसने कहाँ से किया था? 0 से. 0 इज द इनिशियल पॉइंट. उसके बाद इसकी 1 पे वेलोसिटी उसकी कितनी हुई थी? 10, और उसके बाद 12. तो एक इंपॉर्टेंट टाइम हमारे पास यहाँ पर आ रहा होगा 10, और लेट्स से ये आपके पास आ गया 12. दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड देन इट्स दिस. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक ये लाइन बना देंगे और एक लाइन ये बना देंगे. दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आपको ये शो करना है कि दूसरे पार्ट में आपका जो ग्रेडियंट है वो कम हो रहा है पहले से. राइट, so ये पहला वाला ग्रेडियंट ज्यादा है, दूसरा वाला ग्रेडियंट कम है, so स्लोप कम हो रही है. So this is what the velocity time graph will look like here. Straight lines हैं क्योंकि acceleration constant है. Make sense? Question number 37 from the worksheet. We have a walker that travels along a straight road, passing through the points A and B on the road with speeds 0.9 and 1.3 meters per second respectively. The walker's acceleration between A and B is constant and it's equal to 0.004. Okay, so straight road है, A और B से पास करें, दोनों की speeds given है. यहाँ पे हम represent कर लेते हैं. So let's say this point is A, this point is B. A पे speed is 0.9 meters per second. B पे जो speed है that is 1.3 meters per second. The acceleration between A and B is constant and it's equal to 0.004. Time taken and the distance, ये दोनों चीजें figure out करनी है. Constant acceleration, and the first part is pretty straightforward. Let's just write this down here. U is 0.9, V is 1.3, and acceleration is 0.004.
आपको फाइंड करना है टाइम टेकन एंड द डिस्टेंस. v equals u plus at से आपके पास टाइम आ जाएगा. 1.3 equals 0.9 plus 0.004 times t. What's the time? Time की वैल्यू क्या आती है? 0.4 over 0.004. That's 100. 100 seconds शायद आपके पास यहाँ से आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फिर आपको. S equals ut plus half at squared. डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? U is 0.9 into the time taken. That's 100. Plus 1 over 2 into acceleration. Acceleration is 0.004 into time taken. That's 100 squared. Displacement की value क्या आती है? 110. 110. 90 plus 20. Okay, all right. ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई. ठीक है, ये उसने फर्स्ट पार्ट में कहा था. फर्स्ट पार्ट में कुछ रिवीजन करना था. Let's look at the second part now. Now it says a cyclist leaves A at the same instant as the walker. Okay. She starts from rest and travels along the straight road. Walker का क्या मतलब है? So walker is that the person walking? Is that what it means? Yeah, that's what I understood. Okay. That's a weird way of saying this, but okay. A cyclist leaves A at the same instant as the walker. She starts from rest and travels along the straight road, passing through B and at the same instant as the walker. Okay. ठीक है. ये पार्ट, ये पॉइंट बी है, इससे ये दोनों सेम इंस्टेंट पे गुजरते हैं. At time t seconds after leaving A, अच्छा दोनों ने सेम टाइम से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया. दोनों आपके स्टार्ट भी वहीं से हो रहे हैं. दोनों A से स्टार्ट करें और B तक जा रहे हैं. सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. वॉकर की जर्नी तो हमें पता है पहले. उसका हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 0.9 meters per second. Final velocity was 1.3 meters per second. Now we've got every other information about this part of the journey as well. A से B तक हमें पता है कि टाइम टेकन क्या था. दोनों का टाइम टेकन ही 100 है. दोनों सेम टाइम से स्टार्ट किया था at the same instant and the past B at the same instant as well. दोनों का टाइम टेकन भी यहाँ पे 100 है. और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 110 meters. ये डिस्टेंस इज 110 meters. टाइम टेकन वाज 100. ये इंफॉर्मेशन पहले पार्ट में दी हुई है. पहले वाले की एक्सेलरेशन कितनी है ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं. इनफैक्ट A is 0.004. So this is the information for that walker. And what about the cyclist? Cyclist के बारे में हमें क्या पता है? Cyclist जो है वो it leaves A at the same instant. Okay. She starts from rest. इसका मतलब है यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 meters per second. And travels along the straight road passing through B at the same instant the walker. तो इसका टाइम टेकन इतना ही होगा B तक. At time t seconds after leaving it, the cyclist's speed is given by kt cube. इसकी वेलोसिटी का एक फंक्शन है हमारे पास साइक्लिस्ट की वेलोसिटी का, दैट इज v equals k into t cube. All right. In the first part, it says show that
when t equals 64.05, the speed of the walker and the speed of the cyclist are the same, correct to three significant figures. All right. अब सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि k की वैल्यू क्या है. Is there a way to find the value of k? k की वैल्यू हम किसी तरह से फिगर आउट कर सकते हैं? क्या कोई पॉइंट हमारे पास है जिसके बाद इसमें हमें टाइम पता हो और क्या पता हो और कोई और इन्फॉर्मेशन पता हो जिससे हम k फाइंड कर सकें? I Any have idea? a question. I have a question regarding this. Okay, yes. Is this velocity function like defines the entirety of the cyclist journey or after just point B? No, it's starting from A. It's for the entirety of the journey. It's the guy at time t seconds after leaving A. So it's starting from A. A से उसके बाद it's kt cube. So पूरी journey इसी से describe हो रही है. Okay. Okay. How do you find the value of k? Do we have any information given in the statement जिसको हम use कर सकें? You can take both of them to be zero. At rest, it's zero. So time is also zero, I guess. Okay. So what do you get from that? K gets cancelled out. K की value तो नहीं आ सकती ना. So at time zero, velocity is zero. Okay. But how do you find k then? K तो नहीं आएगा उससे. Any other point that we know of? और क्या information? It's like the cyclist passes through B at the same instant as the walker. तो cyclist को point A से point B में जाने में कितना टाइम लगा है? टाइम इक्वल्स 100 के ऊपर दोनों point B को क्रॉस कर रहे हैं. टाइम 0 से स्टार्ट किया था और टाइम 0 पे both the particles, both those things are, both those people are passing the point B. Okay. तो 100 सेकेंड्स में साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है? 110 मीटर्स ट्रैवल कर लिया. हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन तो किसी और पॉइंट पे नहीं गिवन जिसको हम यूज करके के फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन पता है. हमें पता है कि व्हेन टाइम इक्वल्स 100, डिस्प्लेसमेंट इज 110 meters. डज दैट मेक सेंस? टाइम 0 से 100 के दरम्यान में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई है? 110 meters डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है. तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें और डिस्प्लेसमेंट निकाल लें फ्रॉम 0 to 100, इसका इंटीग्रल क्या होगा? kt raised to power 4 divided by 4 with limits 0 to 100. ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये 110 के इक्वल होना चाहिए. we input limits है k into 100 raised to power 4 divided by 4 minus 0. That is going to give us the value for k. So we have 440 equals 100 million k. k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कुछ आ जाएगी. What's the value of k? Answer 1.76 exponent minus 5. 1.76. Can you give me one more decimal place after this? No, sir. ये exact है 1.76? Yes, sir. Exponent minus 5. Okay, 1.76 into 10 raised to power minus 5. This is the value of k that we're getting. आपको decimal में लिख सकते हैं if you're more comfortable with that. That's okay. 1.76 के बाद और कोई decimal नहीं आता वैसे? 1.76 exact है? Yes, sir. Okay, all right, ठीक है. k की वैल्यू आपके पास याद है. ठीक है. So now for the cyclist, v equals 1.76 into 10 raised to power minus 5 into t cube. ये आपकी cyclist की velocity है. ठीक है. आप इसको decimals में लिखना चाहें वो लिखते हैं. That's also fine. इसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है. ये मेरे पास velocity का function आ गया. अब उसने find करने के लिए कहा है. उसने कहा है show that
when t equals 64.05, their velocities or the speed are the same. The speed of the cyclist and the speed of the walker, they are both the same. इसके अंदर आप क्या करें, अब टाइम की वैल्यू 64.05 इनपुट कर दें and see what you get from that. Put t equals 64.05. That gives you v equal to 1.76 into 10 raised to the power minus 5 into 64.05 whole cube. What do we get from this? Sir, 4.6245. 4.6245. This is what we're getting from the. अच्छा 5. अच्छा ठीक है, that's okay. 4 5 ये आपके पास था. So 2 3 significant figures जिसने कहा था वो equal है. तो इसको हम अगर round off कर दें, this is 4.62 meters per second. This is the velocity of the cyclist. What about the velocity of yes? Sir, k is equals to 4.4 into 10 raised to the power minus 6. यस सर, मेरा भी यही आ रहा है. या तो वो मैं कह रहा हूँ कि 1.76 कहाँ से आ रहा है. So I was confused about that. पहले बताना चाहिए था. 440 over 100 million. That's 4 point something, right? Yeah, 4.4 into 10 raised to the power minus 6. 4.4 into 10 raised to the minus 6. This should have been 4.4. I think that was very obvious. I missed that. 440 over that. That should be 4.4 into 10 raised to the minus 6. Okay. 4.4 into 10 raised to the minus 6. Let's change this here as well. 4.4 into 10 raised to the minus 6. This is, what's the velocity? ये क्या आती है, value क्या आती है? 1.156. 1.156. If we round it off to 3 significant figures, that's 1.16. यहाँ तक ठीक है? Any Yes. problem with this? No sir. ये So can we आपकी also site. input it in the Walker's equation as well to show that they're equal? Yes, you can either do that. Walker की equation में डाल दें और उनको equal proof कर दें, या Walker की velocity आप find कर लें और वो prove कर दें कि वो भी 1.16 आती है. दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. Walker के बारे में आपको क्या पता है? That was constant acceleration. Initial velocity of the Walker is 0.9. हमें एक ये information पता है. We know the time. Time is 164.05. And we know the acceleration, that's 0.004. यहाँ से आप final velocity find कर लें. उस time तक ये क्या आती है? V equals U plus 80 is 0.9 plus 0.004 into 64.05. What do we get? 1.1562. 1.1562. So that's also 1.16. ये आपको prove करना था. दोनों same आते हैं. This is the velocity of the Walker. Both of them turned out to be the same. ठीक है? Any problem with this? तो इसमें जो मेन इश्यू था वो था k की वैल्यू फिगर आउट करने का. k की वैल्यू फिगर आउट करने का, बिकॉज आपको वेलोसिटी और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी. आपको ये पता था कि डिस्प्लेसमेंट जब 110 है तब टाइम 100 है, राइट? तो आपने डिस्प्लेसमेंट को यूज करके k फाइंड किया. जब k फाइंड कर लिया उसके बाद फिर आपने वो वेलोसिटी फंक्शन के अंदर इनपुट किया वापस और वेलोसिटीज फाइंड कर ली दोनों की उसके बाद. Any question on this? No, it's good. Let's look at part 3 now. Part 2 में लिखा हुआ दोबारा से 37, 2 and then 2 again. Okay, this is part 3. Find the cyclist's acceleration at the instant she passes through B. And that's straightforward. Velocity function आपके पास आ चुका है.
velocity is 4.4 into 10 raised to power minus 6 into t cube. Acceleration find करनी है, उसके लिए आप इसको differentiate कर लें. Constant remains as it is. 3 आके multiply होगा इसके साथ. So you have 3 into 4.4 into 10 raised to power minus 6 into t squared. What do we get here? 13.2, that's 1.32 into 10 raised to power minus 5 into t cube. ये याद है? T square. Yes, sir. Acceleration की ये value आ गई. अब उसने कहा है at the instant when it passes b, उस तक तब तक time क्या हुआ है? 100. यहाँ पे 100 input कर दें. आपके पास acceleration आ जाएगी उस point के ऊपर. So acceleration turns out to be 1.32 into 10 raised to power minus 5 into 100 squared. And that gives you what? 0.132. 0.132. This is your acceleration.